क्योंकि तिमाही नतीजों का सिलसिला जारी हो चुका है और ऐसे में दूसरी तिमाही में सीएट के नतीजे आए हैं जो कि थोड़े से कमज़ोर रहे हैं। आय की बात करें 8% की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज हुई है, लेकिन मुनाफा 42% घटता हुआ हमने देखा है। मार्जिन्स में भी हम देख रहे हैं करीब 4% की गिरावट है। तो नतीजों में ग्रोथ आउटलुक और तमाम पैमानों पर बात करने के लिए कंपनी के CFO कुमार सुबैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। नतीजे जो आए हैं उसमें जिस तरह ओवरऑल इंडस्ट्री को लेकर अगर मैं बात करना चाहूँ, जहाँ पर हम इन्वेंट्रीज लेवल थोड़े से हाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें या टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें, फेस्टिव डिमांड भी इतनी ज़्यादा उत्साहित नहीं हमें फिलहाल दिखाई दे रही है। तो ये प्रेशर कितना उबलता हुआ दिखाई दे रहा है, कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सेक्टर पर भी और आप पर भी, और साथ ही डिमांड के इस तरह के ट्रेंड को आप कैसे समझ पा रहे हैं, अगर बताएंगे तो। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। हमारा बिजनेस सीएट में 3 बिजनेस वर्टिकल्स है। एक रिप्लेसमेंट हम बोलते हैं, इनका शेयर अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ आवर रेवेन्यू, एंड सेकेंड इज एट एक्सपोर्ट्स, वी कॉल इट एज इंटरनेशनल बिजनेस, वो 20% उनका रेवेन्यू शेयर है। बैलेंस अबाउट 28 to 30% इज आवर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। आपका क्वेश्चन OEM का कनेक्टेड है, इसलिए मैं OEM का कॉन्टेक्स्ट हम बता रहा हूँ। सो इन लास्ट 6 months our growth in OEMs has been very on the lower side, maybe low single digit. इसका कारण आपको पता होगा, generally demand from OEMs, particularly from the passenger category, has been weak. Okay, and maybe that could be the reason as to why there has been inventory pile up. And as we are approaching festive season, generally OEMs sell more during the festive season, during Diwali and Puja. So from our standpoint, we are expecting the demand in the month of October and November to be little higher from OEM side relative to other months. But overall, in the first 6 months and in the current quarter, which is Q3, we expect OEM sales to be revenue share to be at the same level and growth to be subdued. And our growth is largely in the replacement and international business, where we were able to get about double digit in the Q2 as well as in Q1. तो मेरा सवाल दरअसल आपके ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया को लेकर है। एक्सपोर्ट और रिप्लेसमेंट सेगमेंट काफ़ी अच्छा रहा है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करें कि डबल डिजिट ग्रोथ हमें Q3 में भी कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है? साथ ही साथ कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए? Okay, our expectations not only in Q3 and second half, we would like to grow in double digits in these two segments, both in replacement and international business. This 10% growth is year on year. Okay, so generally November month would be relatively a little weak month. Okay, post festive season. So relative to the same quarter of last year, we expected to be a double digit growth for both international business and replacement. In terms of for growth in replacement and international business, so we have launched X5 category of tires, which we call it as platform. And in the international business, we launched our truck and bus radial tires in the US market. And towards later part of the current financial year, passenger car radial tires is also another category that we are launching. And in India, truck and bus radial tires is where we were not able to fully meet our demand, covering all 3 segments. We have commissioned a plant at Chennai last month, and we hope to ramp up the production in truck and bus radial tires in Chennai plant in the current quarter and next quarter. That will help us to meet the overall demand. So these are the key growth drivers at this point in time in the replacement as well as international business segments. अगला सवाल मैं पूछती हूँ, जितना मुमकिन हो सके हिंदी में बात कर लीजिएगा, अगर कठिन भी हो तब भी कुछ शब्द अगर आप हिंदी में डाल सके तो कोशिश कीजिएगा। पिछली बारी जब बात हुई थी तो
जी जी सर, धन्यवाद। प्राइस हाइक की बात हुई थी जब पिछली बार सितंबर में हमारी बातचीत हुई थी। इसको लेकर कुछ बता पाएंगे, ये प्राइस हाइक किस एक्सटेंट तक है और अब आगे कितना रूम है प्राइस इंक्रीज को लेकर सर? ना रॉ मटेरियल प्राइसेस Q2 में 6% Q1 के अलावा इंक्रीज हुआ था। ये साल में 6 महीने में हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट 10% इंक्रीज हुआ है। इसके कारण नेचुरल रबर प्राइसेस Q2 में 250 तक गया था। वो 15 साल में इतना 250 के प्राइस में रीच नहीं हुआ है। ये 15-year हाई है। इसके अलावा ओवरऑल और रॉ मटेरियल बास्केट कॉस्ट वेंट अप इन Q2 और Q1। वो Q3 में भी और 2 गुना ज्यादा हो सकता है। टू कॉम्पनसेट द इंक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट हमको प्राइस इंक्रीज करना पड़ा। Q2 में डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम सम कैटेगरीज में प्राइस इंक्रीज किया है। बिगिनिंग ऑफ Q3 अभी इन अक्टूबर मंथ हमने एक पैसेंजर कार रेडियल टायर्स सेगमेंट कैटेगरी में रिप्लेसमेंट 4 गुना इंक्रीज किया है और ट्रक एंड बस रेडियल आल्सो वेरी क्लोज टू 2% हमने किया है। सो ये हमको और भी करना पड़ेगा अदर कैटेगरीज और पैसेंजर कार एंड ट्रक एंड बस रेडियल। ये मार्केट का रेस्पॉन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमको प्राइस इंक्रीज करने के लिए। सो ये slowly we will keep looking at the pricing to make sure any increase on account of raw material cost is mitigated. And in the international business, as the dollar is also appreciating against rupee, there is a natural adjustment in the prices to the extent of currency. Or in select markets, we are also looking at the right levels of prices. OEM segment में हम quarterly एक बार प्राइसिंग एडजस्ट रेगुलरली हमारा फॉर्मूला अरेंजमेंट में करते हैं विद अ 3 months लैग। सो ऑल दिस पुट टुगेदर शुड हेल्प टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट। वी मे स्टिल हैव अ गैप। वो गैप मैनेज करने के लिए हम कॉस्ट एफिशिएंसी में फोकस करके और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट हम कम करके हम मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल कुमार जी। तो मेरा सवाल थोड़ा भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रिलेटेड है। हम जानना चाहते हैं कि अभी करंट यूटिलाइजेशन लेवल क्या है और आने वाले समय में उसे और ऑप्टिमाइज कैसे किया जाएगा? हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी ओवरऑल कंपनी एवरेज इज अराउंड 80-82%। इस 80-82% में हमारा ट्रक एंड बस बायस LCV उसमें हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा कम है। एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टू व्हीलर और पैसेंजर कार रेडियल एंड और ट्रक एंड बस रेडियल थोड़ा ज्यादा है। इट इज इन द रेंज ऑफ 85% प्लस। सो ट्रक एंड बस रेडियल में हमने थोड़ा गैप दिखाया, इसलिए हमने कैपेसिटी एडिशन किया है। इन ट्रक एंड चेन्नई में in 9 months time you would be able to take the overall capacity to approximately about 1500 tires a day. So हम रेगुलरली हमारा डिमांड, लॉन्ग टर्म डिमांड और लॉन्ग टर्म सप्लाई रिव्यू करके हम कैपेसिटी रेगुलरली हम ऐड करते हैं। हमारा इंडस्ट्री आपको पता है एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसलिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा एडवांस में प्लान करके हम कैपेसिटी रेगुलरली ऐड कर रहे हैं हम। Scale very important in the tire industry. So higher scale of operations, even variable cost per kg comes down, and therefore ये scale के लिए हम utilization करने के लिए हम regularly capacity at least 6 months in advance we keep planning from downstream point of view. Upstream हम 15 to 18 months in advance we plan our upstream capacities. अब सर आखिरी सवाल, हालांकि इस बारे में आप अपने बाकी जवाब में बात कर चुके हैं। आपका शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स ये लगभग 19 से 25% मीडियम टर्म में ग्रो करने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके पीछे अगर हम कारण जान पाएं तो वो क्या कारण होंगे जो इस ग्रोथ को ड्राइव करेंगे, और साथ ही कौन कौन से मार्केट्स हैं जो कि आप टारगेट करना चाहते हैं? 3-4 साल पहले हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का रेवेन्यू शेयर 11% था। वो 11 से हम अभी 20% पहुंच गया है। अभी क्या 20 से हम 25 जानना चाहता हूं। इसके लिए हमको वी आर वर्किंग ऑन 3-4 एक्शंस। एक, वी हैव अ डेडिकेटेड
farm radial or OTR plant at Ambernath, so where हम capacity regularly add कर रहे हैं. That is for Europe and US markets. And as I mentioned earlier, हम ट्रक एंड बस रेडियल टायर अभी यूएस मार्केट में लॉन्च किया है और पैसेंजर कार रेडियल टायर्स Q4 में भी लॉन्च होगा रिप्लेसमेंट मार्केट में. वो भी ये ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करेगा. और साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, इन सम ऑफ दोस geographies, we continue to focus on all our categories of tires. So all put together, we hope to reach about 25% kind of a revenue share, with total pie also growing in double digits, but in the next two to 2.5 years time. वो हमारा strategy है अभी. चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए विस्तार से. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू. ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर हमारे साथ अब मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं. यहाँ पर ये सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला हैं. लक्ष्मीकांत, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में. और सीएट के मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी नतीजों के बाद. तो जिस तरह का ओवरऑल सेक्टर्स को लेके कंसर्न है, सबड्यू डिमांड फेस्टिव सीजन में आती हुई दिखाई दे रही है, साथ ही इनके जो आने वाले समय में एक्सपेंशन प्लान्स और ग्रोथ को लेकर आउटलुक है, सुने आपने. क्या कॉल निकल कर आ रही है और कैसे देखते हैं आप नतीजों को? सुप्रभात कविता जी. जैसा कि आपने बताया कि सीएट अब मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, मैं भी उसी वक्त चार्ट को देख रहा था. सो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आया था, बट 200 डीएमए का एक 2670 पे सपोर्ट लेकर इस स्टॉक ने एक लॉन्ग स्पिन बॉटम कैंडल फॉर्मेशन बनाया है. तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2670. और मुझे लगता है कि ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है स्टॉक्स के वो नजर आ रहे हैं 2950 के आसपास. और जैसे ही इसके ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो हमें एक शॉर्ट टर्म अपसाइड मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इस स्टॉक को पुश कर सकता है 3350 से लेकर 3400 के लेवल तक. तो मुझे लगता है कि 2670 का एक बढ़िया सपोर्ट है 200 डीएमए की वजह से, और वहीं से हमें एक पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है. तो आने वाले समय में इसमें तेजी बनी रहेगी. और जो जैसे ही स्टॉक 2950 के लेवल को क्रॉस करता है, वैसे हमें अपसाइड के मोमेंटम दिखाई देंगे. जीरो अहम लेवल अगर इसको क्रॉस करता है तो हमें 3000 के पार तक की कीमतें और एक अपवर्ड मोमेंटम बरकरार बनता हुआ दिखाई दे रहा है. लक्ष्मीकांत जी,